Hello everyone, welcome अच्छी आपण समस्तिंकर बायोलॉजी लेसन्स विथ कल्याणी ओडिया रे आउ आजी आमे पढ़िबा को जाउछु प्रोकैरियोटिक सेल उपरे। प्रोकैरियोटिक सेल टा तुमरो क्लास 11th बायोलॉजी रो सेल चैप्टर अंडर रे अछि आउ आजी आमे ताकू पूरा कंप्लीट करिया को जाउछु। लेक्चर टा टिके बड़ हेई पारे बिकॉज़ एटा गोटे बड़ आउ बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक तो स्टिक अंटिल द एंड। आशा करूची समस्तन को चैप्टर टा बुझी आसीबो। प्रोकैरियोटिक सेल माने आमे जदी देखिबा प्रो माने हैला ओल्ड, कैरियोटिक माने हैला तमरो न्यूक्लियस। Okay, the types of cells which do not have a true nucleus or a membrane bound nucleus is known as a prokaryotic cell. Okay, examples of organisms कौन हबो? Five kingdom classification हमें जदि देखिबा all the organisms under kingdom Monera they are represented by the prokaryotic cell. ओके जहाँ भी किंगडम मोनेरा अंडर रे ऑर्गेनिजम्स अछंती सबु हेले प्रोकैरियोटिक। ओके कहार भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं और ट्रू न्यूक्लियस नहीं। एग्जांपल्स ऑल आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ओके माइकोप्लाज्मा सबु हेले प्रोकैरियोटिक सेल। तो तमरो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ all represent the prokaryotic cells. Okay, ए पीपीएलओ टा हैला तमरो old name for mycoplasma. Okay, other characteristics हमें जदि देखिबा से माने हेले generally smaller in size, eukaryotes compared रे बहुत जल्दी multiply करंती and vary a lot in their shape and size. Example आमे जदि देखिबा तांकर shape रो they can exist like a rod or called as a bacillus। देखो एटा केमती rod shaped bacteria हेई परिबो और spherical bacteria हेई परिबो called as a coccus type of bacteria और comma shape भी हेई परिबो which is known as vibrio shaped bacteria। Also bacteria can be spirally shaped which is known as spirillum। okay, तो देखो जदि हो बैक्टीरिया many different types of shapes देखौची but still fundamentally तांकर structure हमें जदि देखिबा cellular basis रे it is very similar। okay, तांकर shapes ता different हेई पारे but structural organization is similar across the bacterial species। okay, प्रोकैरियोटिक सेल्स मानकर ताहले बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ता केमिति थाए? All prokaryotic cells they have a cell envelope on the outside। okay, inside रे कौन थाए? गोटे semi fluid matrix which we call cytoplasm। ए cytoplasm भितरे तुमरो genetic material थाए जोटा कि membrane bound नुह आउ ribosomes भी थाए। what are ribosomes? non-membrane bound organelle which is responsible for protein synthesis। okay, apart from ribosomes amara inclusion bodies भी थाए and surface of the prokaryotes जदि हमें देखिबा many surface structures are there। तो हमें ए सबु structures गुड़ा को in detail आगे पढ़िया को जाउछु। एबे हमें देखिबा the first component of the bacterial cell structure जोटा कि हैला हमर cell envelope। तो ए cell envelope ता तुमरो बैक्टीरिया रे outermost layer रे present थाए। okay, and it is made up of three components। what are they? Glycocalyx plus cell wall plus plasma membrane। तो बाहर जदि आमे बैक्टीरिया रो देखिबा it is comprised of Glycocalyx on the outside, inside to it it has the cell wall and further inside it has the plasma membrane। तो ए Glycocalyx, cell wall और plasma membrane हेले हमरो three distinct layers but एमाने together act करंती गोटे single protective unit भाबरे जहा को हमें कहू cell envelope। okay, तो a bacterial cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure and each layer performs a distinct function and together they act as a single protective unit। तो आउथरे माने रखो outside रो हमें जदि inside जिबा glycocalyx, cell wall, plasma membrane। okay,
ग्लाइकोकैलिक्स रो जदि आमे कंपोजिशन और थिकनेस देखिबा डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज रे सेटा डिफर करे ओके किछि बैक्टीरिया रे कोन हुए ना ग्लाइकोकैलिक्स टा गोटे थिक आउ टफ लेयर भाबरे प्रेजेंट थाए जोटा कि टाइटली अटैच्ड टू द सेल वॉल थाए से केस रे आमे ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कहू ओके आउ कोन हुए किछि बैक्टीरिया रे ग्लाइकोकैलिक्स टा तमरो लूजली attached sheath भाबरे थाए which is thin in nature से केस रे हमें ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर कहू तो रिमेंबर करिबो ग्लाइकोकैलिक्स हला तमरा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप तार कंपोजिशन थिकनेस वेरी करे जदि सेटा थिक एंड टफ लेयर भाबरे एग्जिस्ट करे ताको हमें कहू कैप्सूल जदि लूज शीट भाबरे एग्जिस्ट करे ताको हमें कहू स्लाइम लेयर क्लियर inside to glycocalyx amaro present achi second layer of the cell envelope which is the cell wall तो ए cell wall टा very important characteristics of bacteria आउ help करे bacteria रो shape maintain करियारे आउ structural support provide करिवारे ओके तो देखो बैक्टीरिया तमरो बहुत टाइप ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन रे सर्वाइव करि पारे जेमिते कि हाईली एसिडिक कंडीशन से कंडीशन रे कोन नॉर्मल सेल्स बर्स्ट करि दिबे बिकॉज़ द बैक्टीरिया दे हैव द very thick cell wall they can survive under such extreme condition also जदि हाइपर सलाइन कंडीशन देखिबा कोन हबो सबु पानी सेल भितरु बाहर को पळे आसीबो तो कोलैप्स कर जिबा कथा बैक्टीरिया काहे कि कोलैप्स होनी because they have the strong cell wall present in them okay so cell wall plays a very important role in maintaining the shape and giving the strong structural support so what is it made up of it is made up of peptidoglycan okay exception याद रखो देखो mycoplasma is the only type of the bacteria which lacks the cell wall clear innermost layer of the cell envelope जदि हमें देखिबा सेटा हला plasma membrane तो ये plasma membrane टा हला selectively permeable in nature माने हला सेटा outside world संगरे interact करे माने cytoplasm बाहर जहाँ भी अच्छी तमरो organism केमिति interact करे through plasma membrane को molecule आसीबो भितर को कोटा बाहर को जीवो all that is determined by the plasma membrane तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जदि देखिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हला सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स अच्छा सेल एनवेलप रो बेसिस रे आमे बैक्टीरिया को दुईटा भाग रे विभाजित करि परिबु ओके फर्स्ट टाइप हला ग्राम पॉजिटिव सेकंड हला ग्राम नेगेटिव तो दिस bacteria can be classified into two groups okay based on differences in their cell envelopes and the manner in which they respond to the gram staining procedure तो देखो बैक्टीरिया मानकर सेल एनवेलप मु कहूतिली स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर करिवो ओके तो आर बेसिस रे आ गोटे स्टेनिंग प्रोसीजर जोटा कि ग्राम जने साइंटिस्ट डेवलप करथिले तार बेसिस रे आमे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भाबरे विभाजित करि पारिबो ओके तो कोन बेसिकली मने रखिबो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ता ग्राम स्टेन को टेक अप करे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को टेक अप करे ना डिटेल रे प्रोसीजर को देखिबा एबे तो आमे डिटेल रे एबे ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर ता देखिबा ए प्रोसीजर टा साइंटिस्ट ग्राम द्वारा डेवलप हेतिला एठी हमर ग्राम स्टेन टा कोन ग्राम स्टेन हैला क्रिस्टल वायलेट इज अ ब्लू और वायलेट कलर डाई ओके तो बेसिकली कोन हुए देखो आमे गोटे बैक्टीरियल सैंपल को नबा एंड वी मेक अ स्मीयर माने हैला वेरी थिन लेयर ऑन अ ग्लास स्लाइड ओके तापरे ड्रॉपर थ्रू रे आमे ब्लू कलर और वायलेट कलर रो क्रिस्टल वायलेट को आमे पुट करिबा ऑन दैट स्टेन तो कोन हबो all the bacteria they take up that color and are blue in color when we observe it under the microscope okay second step रे आमे iodine put करिबा iodine ता कोन iodine हला mordant तमरो कलर टू को आउरी भी एम्प्लीफाई करे आ 1 मिनिट पई आमे वेट करिबा ओके
नेक्स्ट स्टेप हैला अल्कोहल और एसीटोन वॉश। तो बेसिकली आमे कौन करू, अल्कोहल और एसीटोन ऐड करू टू द बैक्टीरियल सैंपल। तो एटा कौन गोटे डीकलराइजर भाबरे एक्ट करे। ओके, तो ए दी प्रकार हमर सैंपल थाई पारे बैक्टीरिया रो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन हबो ना तांकर कलर टाकू स्टिल रिटेन करिवे, आ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डीकलराइजर ऐड कला परे से माने कलर टाकू लूज करिवे। तो ब्लू हैला ग्राम पॉजिटिव, व्हाइट हैला तमरा ग्राम नेगेटिव। काहे की लूज करिवे, काहे की ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रो गोटे थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थाए, तो से कलर टाकू इजीली लूज करे ना। किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रो सेल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर टा बहुत थिन थाए, तो से इजीली डीकलराइजर ऐड कले कलर टाकू लूज करि दे। ओके, फोर्थ स्टेप रे आमे कोन करिबा ना सैफ्रोनिन ऐड करिबा। सैफ्रोनिन गोटे रेड और पिंक कलर रो स्टेन। तो सैफ्रोनिन को आमे कहू काउंटर स्टेन। तो ए स्टेप रे कोन हबो ना जो भी बैक्टीरिया तमर कलर टाकू लूज करिथिबो सी वापस रे हमें जते बेले कलर ऐड करिवु से डायटा को टेकअप करि दबो। तो ग्राम पॉजिटिव तो ऑलरेडी डाय टेकअप करची, सी नबनी। ग्राम नेगेटिव कलरलेस थिला तो दैट विल टेक अप द डाई एंड इट बिकम्स रेड और पिंकिश इन कलर। तो आमे जते वॉशिंग और ड्राइंग स्टेप करिवु तापरे ऑब्जर्व करिवो अंडर द माइक्रोस्कोप, तेबे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल अपीयर एज पर्पल कलर और ब्लूइश कलर, and gram negative will be stained by the counter color and be observed as pink or red color. क्लियर हैला, एटा हैला तमरो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। बुक रे एते डिटेल नाही, किंतु ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बुझीबा को हेले तुमको ई प्रोसीजर टाकू जानिया को पड़िबो। ओके, so gram positive bacteria, they have a thick peptidoglycan cell wall and retain the crystal violet iodine complex within the thick cell wall even after the decolorization step. Okay, that's why they appear purple. माने decolorization step add कला परे भी से माने तांकर कलर को लूज करंतिनी। ओके, in contrast gram negative कौन करे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रो थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थाए, आउ डीकलराइजिंग स्टेप रे सी तारो प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट को लूज करी दिए, आउ काउंटर स्टेन दैट इज सैफ्रोनिन को टेक अप करे। ओके, दैट इज व्हाई दे अपीयर पिंक और रेड आफ्टर द डीकलराइजेशन स्टेप। सो ग्राम पॉजिटिव लुक पर्पल व्हाइल ग्राम नेगेटिव लुक पिंक और रेड। क्लियर हैला। एबे हमें देखिबा बैक्टीरिया स्ट्रक्चर रो सेकंड इंपोर्टेंट पार्ट जोटा कि हैला जेनेटिक मटेरियल एंड प्लाज्मिड्स। आमे जानि जे बैक्टीरिया केस रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल न थाए, राइट। सो जीनोमिक डीएनए टा केमिति प्रेजेंट थाए, इन ऑल द बैक्टीरिया द जेनेटिक मटेरियल इज अ सिंगल डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। ता माने कोन गोटे क्रोमोसोम जनरली थाए जोटा कि डबल स्टैंडर्ड आउ सर्कुलर इन नेचर। ओके, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर इन नेचर एंड जनरली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो इटा कोन हुए ना साइटोप्लाज्म रे हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर भाबरे प्रेजेंट थाए। ओके, या छड़ा कौन हुए ना बैक्टीरिया रो केस रे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट थाए, आउ ताकू आमे प्लाज्मिड कहू। ए प्लाज्मिड टा भी तमरो इट इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो देखो जीनोमिक डीएनए टा तमरो बैक्टीरिया रो जहां भी एसेंशियल जीन्स ताकू एक्सप्रेस करे, आउ प्लाज्मिड टा कौन करे ना एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स रो जीन्स को से तादरे प्रेजेंट थाए, आ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को सी एक्सप्रेस करे। एग्जांपल कोन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, प्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियोसिन, एगोडा हैला एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर्स exhibited by genes present in the plasmids. Okay, तो हमारा प्लाज्मिड टा केमिति थाए, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए थाए, डबल स्टैंडर्ड थाए और स्मॉल सर्कुलर थाए। स्मॉल
डबल स्टैंडर्ड आउ सर्कुलर थाए तमर जीनोमिक डीएनए टा कौन करे ना एसेंशियल जीन्स को एक्सप्रेस करे ओके आउ प्लाज्मिड कौन करे ना एमितिका जीन्स तादरे थाए जोटा की यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स यार जीन्स को एक्सप्रेस करे ओके ऑल्सो आमे कौन करू ना प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करू तुमर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे केमिति ना ए जो प्लाज्मिड तादर स्मॉल पार्ट रिमूव करिकी आमे किछि गोटे एसेंशियल जीन को आदरे पुट करू एंड दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बैक्टेरियल ट्रांसफॉर्मेशन रे आमे फॉरेन डीएनए टा को इंसर्ट करू आ एसेंशियल जीन्स गोडा को से भावरे एक्सप्रेस करू या विषय रे तुमे डिटेल रे क्लास 12th रे पढिबो ओके एबे चलो आमे बैक्टेरियल सेल को डिटेल रे देखि दबा तार स्ट्रक्चर टा केमिति हुए आमे बैक्टेरियल सेल रे जानिचो कि आउटसाइड रे सेल एनवेलप थाए cell envelope has three parts glycocalyx which is the outermost part then is your cell wall then inside to cell wall you have the plasma membrane right plasma membrane भितरे तुम्हारा कौन था साइटोप्लाज्म जोटा कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भितरे तुम्हारा जीनोटिक मटेरियल थाए जोटा कि मेन जीन्स नीडेड फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल एक्सप्रेस करे and that is not surrounded by any nuclear membrane right एटा को आमे न्यूक्लियोइड और जीनोफोर भी कहू ओके आ एटा हाईली फोल्डेड भाबरे साइटोप्लाज्म रे तुमरा जेनेटिक मटेरियल टा प्रेजेंट थाए अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया भितरे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी थाए जोटा को आमे प्लाज्मिड कहू प्लाज्मिड टा भी अगेन स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड इन नेचर थाए ओके This is flagella which is a surface appendage in case of bacteria. We will be soon learning about it. Okay. I hope until this part tomorrow bacteria structure component guda clear hai jaithiba. एबे आमे देखिबा थर्ड पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जोटा हैला कि स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो हमर स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर माने हैला प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोन करे ना किछि किछि बैक्टीरिया रे स्पेशलाइज्ड structure form करे and those are known as special membranous structure. Number 1 are under रे हैला mesosome. Mesosome टा हमर कोन mesosome हैला specialized differentiated form of cell membrane formed by extension into the cell. ता माने cell membrane और plasma membrane टा कोन हुए ना टिके extend हे जाए cell भीतरकू in a specialized way that is called as the mesosomes. तो केमिति extend करि परिबो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा कोन हमर जनरली इट शुड बी लाइक दिस राइट तो एबे कोन हुए ना जदी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो किछि पार्ट भितरकू एमिति पसी आस्थिबो ओके एमिति पसी आस्थिबो ताकू हमें कोन कहू ना मेसोसोम कहू आ केमिति extend हे परिबो inside the cell these mesosomes can extend itself into the cell as vesicles or tubules or in the form of lamella तो vesicles माने कोन एटा देखो गोटे वेसाइकल फॉर्म रे सीए साइटोप्लाज्म भितर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा पसी आसीबो ट्यूब्यूल माने ट्यूब्यूल भाबरे पसी आसीबो लामेला माने शीट भाबरे पसी आस्तुबो ओके तो यार काम कोन होय देखो मेसोसोम्स टा जदी इनसाइड एम्ति किछि गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो पसी आसीबे तो ऑब्वियसली जेम्ति जदी किछि देयर आर नो इनफोल्डिंग्स दीटार आमे जदी सरफेस एरिया कंपेयर करिबा कादरे सरफेस एरिया बेसी हबो ए केस रे बेसी हबो ना बी केस रे बेसी हबो एठी देखो पूरा फ्लैट अछि एठी टिके एक्स्ट्रा या भितरे पसी आछि तो डेफिनेटली बी केस रे तमरो कोन सरफेस एरिया टा बेसी हबो तो ए जो मेसोसोम्स टा तमरो बेसी सरफेस एरिया बी रे दोची ता फल रे से कोन करे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो सरफेस एरिया को इंक्रीज करे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज करे and helps in respiration also it helps in cell wall formation
DNA replication, DNA distribution to daughter cells, as well as secretion of important products. Okay. Second type of membranous extension hela chromatophores. Chromatophores case रे भी कौन हुए ना प्लाज्मा membrane टा cytoplasm भीतर को पसी आसी थाए, but these membranous extension are special as they contain pigments. So these chromatophores are pigment containing membranous extension, and these are found in some prokaryotes such as cyanobacteria. तो mesosome hela खाली हमर plasma membrane रो extension, chromatophore hela plasma membrane रो extension containing pigment and found in some cyanobacteria. Clear? This is very important. Okay. एबे डायग्राम रे देखो, एटा हला तमरो मेसोसोम रो डायग्राम. मेसोसोम रे देखो तमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो किछि पार्ट एम्ति भितर को पसी आसुची, सरफेस एरिया बढ़ाई दबो, रेस्पिरेशन रे हेल्प करिवो, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ाई दबो. क्रोमैटोफोर भी सेमिति प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो किछि पार्ट भितर को पसी आसुची. स्पेशल कोन ना याद रे पिगमेंट देखा जाए. आउ क्रोमैटोफोर्स आर फाउंड स्पेशली इन द photosynthetic bacteria as they contain the chlorophyll pigments. Okay, I hope it is clear for you. एबे हमें देखिबा फोर्थ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जोटा हैला सरफेस स्ट्रक्चर. तो बैक्टीरिया केस रे तार सरफेस ऊपरे बहुत सारा अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स देखा जानती, जोटा कि बैक्टीरिया को आइदर मोटिलिटी रे हेल्प करंती और अटैचमेंट रे हेल्प करंती. तो नंबर 1 एग्जांपल ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर इज फ्लैजेला. फ्लैजेलेटा हमरा हैला एक्सटेंशन of the cell wall. Okay, filamentous extension from the cell wall which helps the bacteria in movement or motility is called as a flagellum. तो cell wall रो गोटे filamentous extension बाहरे, आउ सेटा बैक्टीरिया को कौन करे ना मोटिलिटी और मूवमेंट रे हेल्प करे. तो ये फ्लैजेलम रहेला तीनटा पार्ट. कौन कौन भितरु जदि हमें देखिबा बेसल बॉडी, एटा हैला हुक, आउ एटा ए पार्टटा जोटा प्रोट्रूड आउट करची बाहर को सेटा हैला फिलामेंट. फिलामेंट हैला लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजेलम and it extends from the cell surface to the outside. Okay, now जदि हमें different bacteria देखेबा तो number and arrangement of flagella is different across the different species of bacteria. Okay, next type of surface structure hele pili and fimbriae. Both pili and fimbriae do not help in motility. आंकर कौन कौन फंक्शन रुए आमे देखिबा. pili hela कौन ना elongated tubular structure. It is made up of a special protein called as pilin and it does not play a role in motility. तो देखो बैक्टीरिया रो सरफेस रे ओके गोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भलिया प्रेजेंट थाए. एटा हैला तमरो कोन ना मेम्ब्रेन रो आउटग्रोथ. ओके, नॉट द सेल वॉल. इट comes out of the cell wall but it is a growth of the plasma membrane. Okay, this is called as pilus. Okay, plural रे pili. तो एटा काम कोन देखो बैक्टीरिया केस रे तुमे जानिचो कि गोटे कंजुगेशन प्रोसेस थाए. तो कंजुगेशन प्रोसेस रे कौन हुए ना जेनेटिक मटेरियल F प्लस रु कौन हुए ना F माइनस को जाए. ओके, सो एट दैट टाइम कंजुगेशन ट्यूब इज फॉर्म्ड. तो ये जो कंजुगेशन ट्यूब हुए that is formed because of the sex pilus. Okay, that is formed because of the sex pilus. So that is the function of your pili. Clear? Next है तुम्हारा fimbriae. Fimbriae कौन ना बैक्टीरिया रो सरफेस रे small bristle like fibers present थाए. This sprout of the bacterial cell and help the bacteria to attach themselves to rocks in the streams or to the host tissue. तो देखो बैक्टीरिया जदि हमें देखिबा बैक्टीरिया रो सरफेस ऊपरे एम्ति thin hair like projections थाए and these help the bacteria to attach themselves to the rocks or it helps to attach to the host tissue. And again these fimbriae are the
cytoplasmic membrane extensions. Okay, they are also the cytoplasmic membrane extension, just like the pili. Okay, so flagella hela motility, pili and fimbriae not help in motility, but pili in sex pilus formation, fimbriae in attachment to the rock surface and host tissue. Is that clear? चलो गोटे इमेज रे बैक्टीरिया रो सरफेस स्ट्रक्चर को एबे बुझिबा. नंबर 1 स्ट्रक्चर हैला फ्लैजेला, जोटा कि हैला फिलामेंटस एक्सटेंशन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द कोन सेल वॉल. ओके, पाइलाई एंड फिम्ब्रिए हैला तमरो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो पार्ट बाहर को आसी थाए बोथ इन पाइलाई एंड फिम्ब्रिए. ओके, एबे पाइलाई एंड फिम्ब्रिए भितर तफात जदि देखिबा, पाइलाइटा हैला थिकर, हेल्प करे तुमको टी ट्यूब और द कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म करिया रे. फिम्ब्रिएटा हैला हेयर लाइक, शॉर्टर, न्यूमरस एंड हेल्प करे अटैचमेंट टू द होस्ट टिश्यू रे. ओके, depending on how flagella are present and their number, आमर different type of arrangement of flagella में देखिया को पाऊ in case of bacteria. जदि गोटे फ्लैजेला प्रेजेंट अछि देन आमे कहू ताकू मोनोट्राइकस बैक्टीरिया. जदि टफ ऑफ फ्लैजेला माने गोटे बंच ऑफ फ्लैजेला अछि किंतु गोटे ही साइड रे अछि, आमे कहू लोफोट्राइकस. जदि दीटा साइड बैक्टीरिया रे प्रेजेंट अछि गोटे बंच ऑफ फ्लैजेला, आमे कहू एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया. ओके, जदि फ्लैजेलाटा पूरा पूरी तारो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हेची तमरो सरफेस रे, ताले आमे ताकू कहू पेरिट्राइकस बैक्टीरिया. ता माने फ्लैजेलाटा थ्रू आउट द सरफेस प्रेजेंट अछि. पेरी माने एवरीवेयर. ओके, ए ट्राइकस माने जमा फ्लैजेला नाही. आई होप अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला एज वेल एज सरफेस स्ट्रक्चर तम माने बढ़िया रे बुझी जाइछो. एबे आगु को जुबा राइबोसोम्स को. एबे हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन हैला राइबोसोम्स. राइबोसोम्स ता हैला हमर एमिति ऑर्गेनेल जोटा कि तमर प्रोकैरियोट रे भी देखा जाए आउ यूकैरियोट रे भी देखा जाए. आउ काम कोन राइबोसोम्स रो प्रोटीन सिंथेसिस रेटा हेल्प करे. ओके, राइबोसोम्स रे तमर मेम्ब्रेन थाए ना न थाए. देखो जदि प्रोकैरियोट्स रे थिबा ताले राइबोसोम्स रे कोउटी मेम्ब्रेन आसीबो. राइबोसोम्स रे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नुह. ओके, दे लैक अ मेम्ब्रेन. ओके, तो प्रोकैरियोट्स मानक भितर जदि देखिबा राइबोसोम्स ता टिके ता छोटो थाए. तारो 70S एस हैला तमरो वेडवर्ड्स यूनिट. आगे को वेडवर्ड्स यूनिट विषय हमें बेसी पढ़िबा. एबे पई जस्ट जानि थाओ 70S हैला बैक्टीरियल राइबोसोम्स. ओके, तो एटा तमरो राइबोसोम्स ता साइटोप्लाज्म रे फ्रीली अकर करि परिबो और सेटा बैक्टीरिया केस रे एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहिबो. देखो राइबोसोम्स ता जनरली प्रोटीन सिंथेसिस बेले प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे एसोसिएटेड थाए. ओके, साइज जदि हमें कहिबा राइबोसोम्स रो 15 नैनोमीटर इनटू 20 नैनोमीटर साइज. नैनोमीटर माने कोन 10 टू द पावर -9 मीटर. ओके, सब यूनिट्स जदि हमें देखिबा, देखो राइबोसोम रो गोटे लार्जर सब यूनिट व्हिच इज 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट हला तमरा 30S. तो 50S plus 30S together will make the 70S राइबोसोम. ओके, अब फंक्शन हमें ऑलरेडी कहि जे राइबोसोम्स हला तमरा मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर? प्रोकैरियोट्स केस रे हमें जदि देखिबा राइबोसोम्स रो गोटे बहुत यूनिक अरेंजमेंट देखिया को मिले. कोन ना गोटे जेतेबेले हमरो प्रोटीन सिंथेसिस हुए सेतेले एमआरएनए को बहुत सारा राइबोसोम्स कोन हुंती ना अटैच हे जानती. ए प्रकार रो स्ट्रक्चर से माने करंती. एटा तमरो हैला मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए. आकु लागी करी बहुत सारा राइबोसोम यूनिट सबु थांती. तो ए स्ट्रक्चर mRNA to single mRNA to which many ribosomes are attached, it is called as polysome or polyribosome. तो ये polyribosome और polysome हैला तमरा unique feature of the prokaryotes. Okay, and काम कोन ribosomes of a polysome translate the mRNA together into many proteins. तो कौन हुए बहुत सारा प्रोटीन्स एठू देखे एठी गोटे प्रोटीन सिंथेसिस हला, एठी गोटे हला, एठी गोटे हला, एमती बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस एका संगरे चाले. ओके, तो प्रोकैरियोट्स केस रे राइबोसोम्स रे तमे मने रखिबो
70s 30s plus 50s तापरे polysomes which is one mRNA plus several ribosomes एतिकी हेला तमरो prokaryotes ribosomes okay ଏବେ ଆମେ आसी जाइछे हमरो final part of the bacterial cell structure जोटा कि हेला inclusion body जदि आमे गोटे बैक्टीरिया नबु बैक्टीरिया रे एटा हेला तमरो जेनेटिक मटेरियल ओके बैक्टीरिया भितरे तुमरो राइबोसोम्स थिबो राइट प्लाज्मिड थिबो ता छडा बैक्टीरिया रे कोन थाए किछि स्मॉल masses भी प्रेजेंट थांती तो ए स्मॉल masses को आमे कहू inclusion body तो ए inclusion body टा not bound by any membrane आदरे किछि membrane surround करी कि न थाए and what do this consist of this consists of glycogen granules जोटा कि reserve material other substances such as phosphate granules cyanophycean granules okay तो a small masses which are not bound by any membrane and are present scattered in the cytoplasm of the bacteria are known as inclusion body clear another type of inclusion body hela tamara gas vacuole जोटा कि तमरो ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रे देखा जाए तो कौन हुए ना एटा तुमे जदि बैक्टीरिया नेलो एटा तार न्यूक्लियोइड मटेरियल तो ता भितरे स्मॉल गैस फिल्ड स्ट्रक्चर थाए एगुडा को आमे कौन कहू ना गैस वैक्यूल कहू जनरली ए गैस वैक्यूल जदि तमे नबो एटा तमरो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रे देखा जाए देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जदि आमे कहिबु तार फोटोसिंथेसिस पई कोन लाइट दरकार तो लाइट पई बैक्टीरिया को कोन सरफेस ऑफ द वाटर रे आसिया को पड़िबो तो ता पई बैक्टीरिया को फ्लोट करिया को पड़िबो तो ए गैस वैक्यूल्स माने बैक्टीरिया को फ्लोट करिया रे हेल्प करंती गैस वैक्यूल्स आर गैस फिल्ड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम aquatic prokaryotes especially cyanobacteria and these provide buoyancy and help the organism to float at a suitable depth in water तो cells माने कोन करि पारंती ना एडजस्ट करि पारंती निजर पोजीशन को आउ ऑप्टिमल लाइट और nutrient पाई पारंती okay so gas vacuole is also one type of the inclusion body that helps the photosynthetic bacteria to be buoyant or to float on the aquatic surface so that it can get optimal light is that clear तो आजिर क्लास ता तो टिके लंबा रहितिला किंतु आमे पूरा प्रोकैरियोटिक सेल तार स्ट्रक्चर को डिटेल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रु ता छडा एडिशनली किछि जदी स्ट्रक्चर कांसेप्ट दरकार अछि ताकू मिसे की कवर करि नेचु मु आशा करछि समस्त एटा बहुत भलो भाबरे बुझी आसीची जदी किछि डाउट रहिची तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ओके आउ मु तमनको बहुत टाइम भी देथिली सेल चैप्टर टा को टिके कवर करिया पई अलोंग साइड किंगडम तो आशा करछि तमने सब सेडा पढितिबो भलो भाबरे आजिरो वीडियो रे आमे थ्योरी पार्ट टा कवर कलु नेक्स्ट वीडियो आसीबो तमरो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर ऑन सेल ऑन प्रोकैरियोटिक सेल ओके तो आउ नेक्स्ट वीक रे आमे पुन थरे किंगडम प्रोटिस्टा को कवर करिबा okay thank you everybody have a very good day and if you like the video today please hit the like button subscribe to my channel and share with your friends